My dear friends, today we're meditating on Psalm 84:11. प्यारे दोस्तों, आज हम मनन कर रहे हैं भजन संहिता 84:11 प्रतिज्ञा वचन पर। No good thing उनसे वो कोई does he withhold अच्छी वस्तुएं रखना छोड़ेगा from those whose walk is blameless. जो लोग खरी चाल चलते हैं। Yes, my friends, God will fill you with his goodness हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको अपनी भलाई से भर देगा as you walk blameless in his sight. जैसे आप उसकी दृष्टि में निर्दोष होकर चलते हैं। So what does it mean to be blameless? तो निर्दोष होने का मतलब क्या है? In Psalm 119:1 we see, भजन संहिता 119:1 में हम देखते हैं, Blessed are those whose ways are blameless, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं who walk according to the law of the Lord. और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। My dear friends, प्यारे दोस्तों, we see a man in the Bible whose ways were blameless. हम बाइबल में एक व्यक्ति को देखते हैं जिसके सारे मार्ग एकदम खरे थे। We see a man named Daniel who was taken as a captive to Babylon. हम दानियल को देखते हैं जिसको बेबीलोन में बंदुआई में ले जाया गया था। He had many opportunities to give in to the orders of the rulers, उसके पास बहुत से मौके थे कि अधिकारियों के कारण अपने नियम तोड़े, even though it was against the Lord's commands, चाहे वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में हो, just to keep his life safe. कि उसके जीवन को सुरक्षित रख सके। But then he followed the commands of God. फिर उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। When there was a rule to worship only the king, नियम था कि केवल राजा की ही आराधना करें। he did not let go of his faith. उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। He prayed 3 times a day. वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। He did not let those rules interfere with his faith. उसने उन नियमों को अपने विश्वास में रुकावट नहीं डालने दी। God saw how he was pleasing in his sight परमेश्वर ने देखा कि उसकी दृष्टि में वो कितना प्रसन्न करने वाला and है honored him in due time. और सही समय में उसका आदर किया। God blessed him with gifts परमेश्वर ने उसे वरदान दिए which amazed the rulers, जिससे राजा हैरान हो गए and in turn he was lifted up to rule over the kingdom. और इस कारण उसे उन्नति देकर मुख्य प्रधान बना दिया गया। This did not happen in an instant. और ये सब कुछ एक ही पल में नहीं हुआ। He faced so many trials and tribulations, उसने बहुत से सताव परीक्षाओं का सामना किया, so many tests, बहुत सी परीक्षाओं से गया, but then he still kept his faith, लेकिन फिर भी अपने विश्वास को बनाए रखा, walking according to the commands of the Lord प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलता रहा, and obeying his words. उसके वचनों की आज्ञा मानी। God did not let him down, प्रभु ने उसे गिरने नहीं दिया, but he gave him every good thing. लेकिन उसने उसे बहुत अच्छी चीजें दी। No good thing was withheld from his servant. उसके दासों से कोई अच्छी वस्तु परे नहीं रखी जाती। Even today you may say, I am a righteous person, my ways are blameless. आज आप कहेंगे मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, मेरे मार्ग तो निर्दोष हैं। Where is my reward? मेरा प्रतिफल कहाँ है? When will the good thing happen in my life? मेरे जीवन में कब भलाई होगी? My dear friends, प्यारे दोस्तों, even though you are going through trials and tribulations in your life right now, हालांकि अभी आप अपने जीवन में मुश्किलों और सताव में से होकर जा रहे हैं, God will deliver you and give you the reward in due time. परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, सही समय पर प्रतिफल देगा। As he lifted up Daniel जैसे उसने दानियल को उठाया and made him a ruler और उसे प्रधान बनाया and rewarded him with his goodness, और अपनी भलाई से उसे प्रतिफल दिया, he will do the same for you. वो आपके लिए भी ऐसा ही He करेगा। will give you the healing. वो आपको चंगाई देगा, He will give you the child. वो आपको संतान देगा, He will give you the life partner, वो आपको जीवन साथी देगा, the job that you are waiting for, जिस नौकरी की आप राह देख रहे हैं, the success in your business, आपके बिजनेस में सफलता देगा, the deliverance from your trouble, आपको मुश्किलों से छुटकारा देगा, and he will lift you up and honor you. आपको ऊंचा उठाकर आदर देगा। No good thing will he withhold from the blameless. वो खरे लोगों से भली वस्तु परे नहीं रखेगा। So be encouraged, my dear friend. तो प्रोत्साहित हो जाएं प्यारे दोस्तों, You will be honored in due time. सही समय पर आपका आदर किया So जाएगा। keep your trust and faith in the Lord. तो प्रभु पर भरोसा और विश्वास रखें, Continue to walk a blameless life निरंतर निर्दोष जीवन जिएं, and be righteous in the sight of the Lord. परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो, God will honor you. परमेश्वर आपका आदर Shall करेगा। we pray? आइए प्रार्थना करें। Lord, today bless those who are watching this program. पिता, आज जो प्रोग्राम देख रहे हैं तू उन्हें आशीष दे। They may say, I'm walking a blameless
life. When will I get my miracle? कह रहे होंगे कि मैं निर्दोष जीवन जी रहा हूँ, मेरा चमत्कार मुझे कब मिलेगा? When will I get my reward? मेरा प्रतिफल मुझे कब मिलेगा? I'm going through many trials and tribulations. मैं बहुत सी परीक्षाओं और सताओं में से जा रही हूँ। Lord, you see how they are living their life, प्रभु देख कि ये कैसा जीवन जी रहे हैं, how they are obeying your every word. कैसे ये तेरे वचन का पालन कर रहे हैं। Honor them today, Lord. आज इनका आदर कर प्रभु, Give them your blessing. अपनी आशीष इन्हें दे, Give them your reward. अपना प्रतिफल तू दे, Give them every good thing हर एक भली वस्तु दे and honor them. और इनका आदर कर, Lift them up इन्हें ऊंचा उठा and increase them. और इन्हें बढ़ा, Bless them. इन्हें आशीष दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगती हूँ, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आशीष दे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, through the television program टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा, and through the social media programs, सोशल मीडिया प्रोग्राम के द्वारा, which we send out to thousands of people every day, जो हम हर दिन हजारों लोगों को भेजते हैं, God's power flows into the people. परमेश्वर की सामर्थ लोगों में बहती है, Miracles happen, चमत्कार होते हैं, tears are wiped away, आंसू पोंछे जाते हैं lives are built. और जीवन उभारा जाता है। We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. हर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर एक प्रोग्राम आता है उसके लिए हम स्पॉन्सर्स चाहते हैं। And as your co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. और जैसे कि आप को स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, आपके नाम वहां पर होंगे और मैं व्यक्तिगत रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Millions who watch will also pray for you. लाखों लोग जो वो प्रोग्राम देखेंगे वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll send you a copy also. हम आपको कॉपी भी भेजेंगे। So please call this number. तो कृपया इस नंबर पर फोन कीजिए। When you have the birthday, चाहे आपका जन्मदिन हो, your birthday or your loved one's birthday, आपके प्रियजनों का जन्मदिन हो wedding anniversary, या शादी की सालगिरह हो, or the loss of a loved one, a memorial day, या फिर किसी प्रियजन को आपने खो दिया है और उनके मेमोरियल का दिन है, or a Thanksgiving offering, या फिर धन्यवाद की भेंट है, or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, या फिर जब आपको नौकरी मिलती तो आप महीने की पहली तनख्वाह दे देते हैं। you can honor God. आप इस तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं। All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. आपके सारे डोनेशन लोगों की सेवा के लिए यीशु के नाम में जाएंगे। Here's how you can support. आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाखों लोगों की आंसुओं को पहुंचने के लिए आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन कार्यक्रम प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscause.org में पधार सकते हैं, नहीं तो अपने निकटवर्ती प्रार्थना भवन में भी आप आ सकते हैं।